Challenge, I guess let's begin. It's exactly Walaikum Assalam, Halima, and Walaikum Assalam, everybody who has joined us. I'm officially beginning the session, okay? And the ones who could not join us as yet, I wish आप लोगों की problem solve हो जाए. Again, the webinar is being recorded, or whoever your friends and fellows are missing as yet, just give them a message that they can join as soon as their connection is restored, and also catch up with the recorded session, okay, so that you don't miss anything. All right. Thank you, Anika. Thank you, Noor Fatma. I was looking forward to meeting all of you. मैं कोशिश करती रही discussion forum पे आप सबको follow करने की, whatever you have been sharing. I am so happy. Whatever experiences you were sharing from your heart, and I was very happy to read them. Plus, your perspective on personal development was also very heartening to see. Some of you people have actually written very long and conscientious notes on personal development as well, which was very good to see. कुछ थोड़ा सा पहले recap कर लेते हैं about the personal development that we did in the last session. Then through Mutahir, I got to know a couple of your queries as well that I'll resolve. I'll take 5 minutes on the previous session before I move on to the next one, so that कोई और issues हो. I'll also give you a few minutes to talk about the previous session if you have any queries. ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और जो आगे आने वाली चीजें हैं दे आर क्वाइट स्ट्रेटेजिक, सो आई वांट यू टू ग्रैब दोज एज वेल. इसीलिए हम थोड़ा सा क्यूरीज के ऊपर ज्यादा बात करेंगे. ओके, द फर्स्ट, लेट्स जस्ट रीकैप द फर्स्ट session. Previous session was about personal development, and the areas that we covered of personal developments was goal setting and growth mindset. So personal development, as per again मैंने concluding remarks session 4 के भी छोड़ दिए थे और session 5 के भी छोड़ दिए. वो इसलिए छोड़ दिए because I was waiting for your perspective and including your perspective, और जो हम आज बातें करेंगे उनको मिला के मैं मॉड्यूल के अंदर concluding remarks लिखूं. So now I can by learning through your experiences and the perspective you shared, total personal development key importance, although it's a huge, again it carries a huge importance in terms of learning from Quran and in terms of learning from Shora or Sufia or जो भी हमारे scholars रहे हुए हैं. However, अगर उसको summarize करें, so the first thing is this personal development is very important because इंसान के पास बहुत time जो है ना, वक्त is abundant, is actually abundant. After doing everything, or especially in this part of in this time and age, we do have time that we very easily waste on very not so good distractions in life, right? So personal development is one such focus that keeps you very motivated and inspired towards something very positive in life. जरूरी नहीं होता कि अभी हमें कोई कोई गोल है. Sometimes we do not have a goal in mind, right? Sometimes for a personal development we do not think that we need anything. But one thing, एक चीज अपनी जिंदगी में गांठ बांध ली, जो वो है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल. Either you have a goal or either you do not have a goal. Personal development is one thing that will keep you actually stay on track without certain distractions that you actually are facing these days, जिनके साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So keep your focus on personal development and will keep you motivated and remain on track from distractions. Then if you have a goal, then personal development is a strategic process to achieve that goal. Okay, so अगर कोई goal है दिमाग में, Ubaidullah, interesting question. I'll right away answer you. अगर कोई goal है आपके दिमाग में, then personal development again is a process to achieve those goals. अब ये जो आपने कहा multiple goals हैं, इसके ऊपर अभी जब हम action plan के ऊपर बात करेंगे, उबैदुल्लाह आपका question वहाँ पे answer हो जाएगा, and I will make sure that it is answered inshallah. Okay, just hold on to this question because it's a very interesting one, and I'll make sure that हम आज के session में इसको reply करें. So ये दो तीन चीजें, to use our time effectively and to achieve our goal, we are learning about personal development. Again, ये कितनी important है ये हम last time बात कर चुके हैं. अब रह गई बात ग्रोथ माइंडसेट, और हमने एक और चीज पे बात की, वो थी गोल सेटिंग. आप सबकी असाइनमेंट्स जितनी भी मुझे मिली, उन असाइनमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज still you people are now able to understand what a goal is. However, you are missing on the SMART, SMART elements of the goals, right?
अगर कोई एक गोल स्मार्ट नहीं है, विच मीन्स इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट अचीवेबल, इट इज नॉट रियलिस्टिक और इट इज नॉट टाइम्ड, तो वो गोल एक ड्रीम बन जाता है. वो जो अभी उबैदुल्ला भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे और बच्चे भी करें कि हम वी आर स्ट्रगलिंग, यू वर यूजिंग दीज वर्ड्स ऑफ स्ट्रगलिंग टू अचीव अ गोल, इट इज बिकॉज द गोल इटसेल्फ इज नॉट सेट एज अ स्मार्ट गोल. व्हाट आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि अगले सेशन में जाने से पहले व्हाट आई विल सजेस्ट यू, आप सब, यस मैं भी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ. आप सब ने अब ये एग्जाम्पल्स मैं दूंगी इस सेशन में इंशाल्लाह. द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज फ्रॉम द प्रीवियस सेशन इज कि आप एक पेपर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेपर, राइट, अंटिल यू आर अ वेरी प्रोग्रामिंग और अ ग्राफिक पर्सन जो कि बहुत स्क्रीन के ऊपर ओरिएंटेड रहता है, टेक अ पेपर और जो गोल आपने अभी मुझे एक्सेल शीट में भेजे हैं उनको एक साइड पे लिख लीजिए. अगेन इफ यू आर समवेयर, if you're very if you are not in a personal conditions and if you're somewhere where you can open your cameras, kindly open your cameras so that I can see you and I can see your expressions as well, and I can see how you're gripping the session. uh, Coming back to the point of goals, so if you have goals, अपने goals को एक पेपर पे लिखिए. Then write SMART, जिसके बारे में हमने last time बात की थी. It's also provided in the articles of the last session. And checklist बनाइए pencil के साथ. If my goal is specific, if my goal is meeting the criteria of attainability, if my goal is meeting the criteria of realisticity and timed as well. ये आप चेकलिस्ट बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. बिकॉज अगैन अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आई विल ट्विस्ट द गोल सो दैट द पर्सन इज नॉट डायरेक्टली, सॉरी आई एम हैविंग अ थ्रोट एज वेल, सो साथ में मुझे थोड़ा सा पानी या चीज लेनी पड़ेगी. एनीवे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक गोल चेक किया विच वॉज अबाउट डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई वॉन्ट टू डेवलप और आई विल डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, जस्ट I'm sorry for this. Well, now self-confidence, this goal is not specific. क्योंकि self-confidence is a huge term. In what aspect, focus area clear नहीं था. Emotional aspect of self-confidence, social aspect of self-confidence, financial aspect of self-confidence, there are multiple aspects of self-confidence, right? So the goal, Ubaidullah, and I'm giving you examples. So the goal that I want to develop self-confidence is not specific. Okay, you have to be specific in what genre of life you wish to develop self confidence. और उसमें क्या मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे स्पोकन में प्रॉब्लम होती है, मुझे अपने स्किल सेट्स को डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम होती है. एग्जैक्टली व्हाट एरिया ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यू आर टॉकिंग अबाउट इन सेटिंग दिस गोल. ओके, then this goal is not measurable because we are saying like self confidence 2072 में set करना है. When would you want this you to be a to consider yourself a self confidence person? For example, आप कहते हो I want to make my linguistic skills better by 6 months. Okay, so then it is a time based measurable goal. ठीक है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरी उसको स्पेसिफिक कर लिया, उसको मेजरेबल कर लिया और टाइम बेस कर लिया. Now, is this realistic? Yes, this is realistic because it's not colliding with my values, and self-confidence is something which is not impossible to develop. It's a skill that we can all develop. Now, this random goal, which was just to develop self-confidence, is a smart goal that's saying I have to improve or I have to improve my linguistic skills by this time. Okay, so that I'm able to present confidently in terms of a 10 people audience or 5 people audience or maybe 100 people of audience. Okay, now this is measurable, now this is specific, and now this is time based and realistic. ठीक है, अब आप जब 10 लोगों के सामने नहीं कर पाओगे फिर आप कहते हो अच्छा ये मैंने मेजर किया था, ये हुआ नहीं, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर काम करूंगा, राइट? और अगर आप कर पाए तो आप कहते हो दिस इज नाउ मेजरेबल. नाउ यू गेट इट. सो योर जो जितनी भी आपकी एक्सेल शीट्स अबाउट स्मार्ट गोल्स मुझे मिली थी उसमें स्मार्ट का एलिमेंट मिसिंग था. काइंडली उसको रिव्यू कीजिएगा खुद से. ऑल राइट,
नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, मुझे मुताहिर ने भी बताया था कि आप लोगों को 30 डे चैलेंज के अंदर थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं. सो मुताहिर, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी दैट, सो दैट मैं मूडल जरा ओपन करती हूँ. Here it is. And this one is, can you all see the screen? Mutahir, you can see the screen? Moodle Yes, ma'am. दिख रहा आपको? Perfect. Okay. So now we are talking about, quickly से review करते हैं about your about the growth mindset, जो हमारा वो था assessment, right? Which was this assignment. ओके, सो दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट 30 डे चैलेंज. मेरा ख्याल है ऑनलाइन रील्स में और शॉर्ट वीडियोस में यू पीपल मस्ट हैव बीन लर्निंग अबाउट 30 डे चैलेंजेस. देयर आर मल्टीपल. 30 डे चैलेंज मीन्स कोई 1 2 4 5 ऐसे टास्क सेट करना जो हर हफ्ते महीने के हर दिन आप उनको करें and see the difference. Okay, so it's a challenge that you continue doing something, a very small task maybe, for 30 days to see the difference or to actually inculcate or develop something. So today, this time, our goal was to foster growth mindset. उसके लिए आपको मैंने एक शीट दी थी. I'll let you know the sheet. Mutahir, will you be able to see the sheet as well? Yes, ma'am. Technically, it downloads and then you have to open it externally through your Uh, File Explorer. but then let me see, I have to stop sharing and then go back to the sheet, right? Probably, yes. Yes. Just a second. Yeah. Now I'm sharing again with you the sheet. Where is the sheet? Here you go. Can you see this sheet, right? Yes, ma'am. Now we can. Okay, good. So this was 30 day challenge to foster growth mindset. Many examples दी थी. I've given you in the Moodle, I've given you examples of, here you can see, there are multiple examples that you can use. For example, over here I've given, you can give yourself a daily affirmation. You can step out of your comfort zone. For example, you say, what do you not like? You do not like to walk, maybe. Walking is stepping out of your comfort zone. So you say, I'll walk for 5 minutes. That is your small task. Okay. Practice some self care. कोई भी एक example आप use कर सकते हो कि for example, I'm going to meditate for 5 minutes. Okay. और I'm going to sit quiet for 5 minutes. Start journaling, writing. कुछ लिखना है तो आप वो कोई उसके बारे में कोई task set कर सकते हो. कुछ volunteer करना है, you can go to a hospital or you can go to a nearby community area जहाँ पे आप कोई volunteer करना चाहते हो. Getting feedback, or probably you wish to set a task कि मुझे किसी friend से कोई feedback लेना है, कुछ रीड करना है, कुछ समथिंग न्यू. सो दे हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ टास्क्स ऑलरेडी दैट यू कैन फिल ओवर हियर. ये चैलेंज 1, व्हाट टास्क, कौन सा टास्क आप जो ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करने में हेल्प आउट करेगा, राइट? सो यू विल राइट ओवर हियर द टास्क, one task, small task that takes 1 to 2 minutes, or how does it will help you. Okay, some of the students have already done the assignments and they're done very well. So if you are one of those people who have everyone who has done it almost right. So please share with your fellows as well, that how did you do it. Okay, I'm not, I cannot share the assignments of the other people with you, but if you have done it, have you done it already, just share with your fellows as well. I hope this has cleared. आपको समझ आ गई होगी. जो मैंने लिस्ट दी है उनमें से छोटे छोटे 5 टास्क आपने उठाने हैं और वो चैलेंज 1 2 3 4 5 के तौर पे इधर जस्ट आपने उसको लिख देना है. एंड हाउ विल इट हेल्प यू, वो भी आपने बताना है कि आपको कैसे लगता है ये ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में कैसे हेल्प आउट करेगा ये स्पेसिफिक चैलेंज. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल. और वो 30 डेज के लिए आपने फॉलो करना है. उसके लिए मैंने आपको एक शीट भी दी थी कि जो पहले दिन आप 5 टास्क कर लो तो उसको टिक कर दो, दूसरे दिन 5 टास्क कर लो उसको टिक कर दो, तीसरे दिन 5 टास्क कर दो तो उसको टिक कर लो. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर एज वेल. ऑल राइट.
I think it's clear now. Any more questions before I move on to the next session? Today's session, आज के session पे जाने से पहले, if you have any more questions, quickly से मुझे बता दीजिए. ठीक है, चलिए जी. So let's just continue with today's session. Okay. बताइए जब screen सामने आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा. आ गया. Okay, आ गई है full screen? Not the presenter's view, right? Just Okay, so slideshow. Yes. today we will be talking about personal development. उससे पहले जल्दी से let's set straight. Get ready for learning. Last time we did it, right? Leave everything that you have in your hand. And relax. Take a deep breath. Exhale. Inhale. Exhale. This time, when you inhale, think of everything that's happening around you. Maybe the sounds you can hear from your friends and family around. Maybe something from outside the street. Maybe something is going on in your mind about a deadline, or maybe something about an assignment. And breathe out. Just let everything out and get ready for this learning, because for a short period of time, you are present here, listening to the sound of my voice, and you will continue listening as you allow yourself to learn new and helpful, worthwhile techniques and learning. All right. Are you now ready for learning? Thank you. Let's now start with today's session, because today's session is all about how of the learning, right? Last time we did talk about self-reflection and we did talk about goal setting. आपकी assignments मुझे मिल रही हैं and I'm also constantly checking and suggesting you as a therapist, as an educationist, कि आप सबको क्या क्या करना चाहिए to help you in your fields of life. वो मैं discussion forum में भी भेज रही हूँ और individual भी, जहाँ मुझे लग रहा है आपको मेरी help की ज़रूरत है. Okay? So keep sharing your assignments. I will keep checking those and I will, जहाँ मुझे लगेगा you need help other than the grading one. So वहाँ पे I'll ask you to fix. Today we'll be talking about 4 main areas of personal development planning process. Third one is action plan, resource management, timeline, progress tracking. यहाँ पे I want you to look at me and let me tell you a moment of truth. Personal development planning इतनी मुश्किल नहीं है जितना मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि सिंपली आप गोल सेट करते हो, उनको स्मार्ट करते हो, उसके बाद रिसोर्सेज मैनेज करते हो, उसके बाद टाइमलाइन बनाते हो और प्रोग्रेस बनाते हो. मैंने उसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया? Because when I learned about you people, I realized some of you are learning software development. Some of you are learning designing. Some of you are already into field of teaching. Be it any project that you people are catering in your life at the moment. ये जो 5-6 terms है ना, in terms of vocabulary or in terms of terms, are big skills, are very huge skills in them, in their own selves. अगर आप सिर्फ एक्शन प्लानिंग को लिखते हो ना, इसमें डिग्रीज मिलती हैं. Resource management is a huge skill, is a huge course itself. It actually costs you a lot of hundreds of thousands to earn that degrees. Timeline creation and progress tracking itself is a very huge genre of HR management. आप किसी भी फील्ड से हो, आई वॉन्टेड टू गिव यू सर्टन वोकैबलरी, ऑल्दो चीजें बहुत सिंपल कर रहे होंगे इसमें फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, बट आई वॉन्टेड यू टू इंट्रोड्यूस दीज वर्ड्स
गिव यू सर्टन वोकैबलरी, ताकि आप किसी भी फील्ड में आगे करियर प्रोफेशनल लाइफ में जाओ और ये वर्ड्स आपके सामने आए, यू कैन क्विकली ग्रिप कि हाँ वी नो दिस प्रॉब्ली इन अ डिफरेंट रेफरेंस बट वी नो दीज. सो आई वॉन्टेड टू गिव यू सम वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि पूरी इन जिसको आप इन फील्ड मार्केट टेक्निक्स कहते हो ना, आई वॉन्टेड टू गिव यू दोज. इसके अंदर काम हम बहुत छोटा बेसिक करेंगे. हाउ एवर ये जो अपने आप में जो वर्ड्स हैं, दीज इट सेल्फ दिस दीज एक्शंस और दीज काइंड ऑफ ये जो प्रोसेस है, ये इट सेल्फ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस कहलाते हैं. दैट विल हेल्प यू इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, be it personal, be it professional. So that is why I actually divided those into big names और big Excel sheets, ताकि कल को आप जब इस पे काम करना स्टार्ट करें तो छोटी छोटी vocabulary से you are already acquainted, और इंशाल्लाह when you go into field और आप इन बड़ी बड़ी चीज़ों को भी देखें, so you are like I know this from somewhere. Okay, so काम छोटा छोटा करेंगे, but yet I wanted to give you something which is relevant to market and field these days. All right, now getting back to the, so परेशान नहीं होना, ये बड़े बड़े words हैं, however they are very easy to understand. Okay, now let's talk about the third thing. First of all, we will be talking about action plan. अच्छा जी, एक्चुअली में ये होता है जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, जैसे अभी उबैदुल्ला ने भी बोला कि मैंने मल्टीपल गोल सेट कर लिए एंड टाइम नहीं मिला. एंड देन बहुत सारे अभी पीछे बच्चे, अनिका ने शायद मेंशन किया हुआ था डिस्कशन फोरम में, एंड अ कपल ऑफ मोर स्टूडेंट्स एज वेल, दैट दे आर स्ट्रगलिंग नाउ टू अचीव देयर गोल्स. Because you have set the goals, a goal itself is just a wish without a plan. कोई भी गोल, मुझे ये करना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर एग्जाम्पल, इट कैन ओनली बी बाय विश until I have a very strategic plan to achieve that goal. Action planning usually हम goal setting में से miss कर जाते हैं, and then what we want is we want कि ये क्यों नहीं स्ट्रगलिंग टू फुलफिल द कमिटमेंट्स, अभी अभी आपको इसी में आंसर हो जाएगा. लेकिन बट देन वी आर लाइक कि हम अचीव क्यों नहीं कर पाते. आपको पता है ओनली 3% ऑफ पीपल आर एबल टू एक्चुअली कमिट विद देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. पाकिस्तान में तो बहुत कम रिवाज है, बट अक्रॉस मैं अक्रॉस ग्लोब की बात कर रही हूँ, सिर्फ 3 से 4% ऐसे लोग हैं जो अपनी न्यू ईयर कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं. सिर्फ 3-4%. और अगर कितने लाखों करोड़ों उसको करते होंगे, सिर्फ 3-4% लोग ऐसे हैं जो वो कमिटमेंट्स को पूरा कर पाते हैं. वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एक्शन प्लान. Until you have an action plan to achieve your goal, to go through this pathway, you cannot at ever realize your goal. ठीक है? So what is an action plan now? वो जो एक भूल भुलैया थी, उसको बेसिकली एक रोड मैप बना देना, इन अ वे दैट वी हैव अ रास्ता. हमें ये तो पता था हमने पहाड़ की चोटी पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो दूर से नजर आता है ना, मरी के रास्तों में और सवात वगैरह के रास्तों में, वो यहाँ ऐसे 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 एक रास्ता जा रहा होता है. एंड देन वी आर श्योर दैट हमें वो वाला रास्ता फॉलो करना है और हम वहां पे पहुंच जाएंगे, राइट? बट इफ वी डू नॉट हैव अ वे, अगर हमें वो रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, देन वी आर लाइक कि हमने जाना कहाँ से है. गाड़ी है, व्हीकल है, we know the destination, but if we do not have a path or if we do not have a map, we cannot reach our goals. So action plan is basically the roadway जिससे हमने अपनी उस पे अपनी जगह पे पहुंचना है. And then we are happy. And then that gives you the clarity, direction, focus, distractions को remove करता है, frustration और struggle को कम करता है if you have an action plan. Again, अगर सिर्फ माइंड में है तो यू कैन लूज इट एनी टाइम. यू हैव टू राइट इट डाउन. लिखने से कोई भी चीज एक्चुअली आपकी न्यूरो कमिटमेंट में आ जाती है, न्यूरो बायोलॉजिकल कमिटमेंट में आ जाती है. इसीलिए बचपन में हमें टीचर्स काफी सारा लिखाया भी करती थी कि जरा इसको राइट डाउन 10 टाइम्स एंड राइट डाउन 20 टाइम्स, because wherever we write something, it actually literally sets in our long-term memory and actually establishes a neurobiological commitment with that goal as well. So हर चीज को लिखना जरूरी है इसीलिए. All right, now we will be talking about, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज ये दिखा दूं, that ये मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट्स अपनी ओपन की हुई है. अभी मैं इस प्रेजेंटेशन में जो भी आपको बता रही हूँ,
that is from the Excel sheets of that are given in the Moodle. ठीक है, वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ओवर हियर, ताकि जब आप वो एक्सेल शीट्स खोलें टू वर्क और टू डू एन असाइनमेंट और टू अंडरस्टैंड समथिंग, आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्शन प्लानिंग की बात करेंगे तो आप इस किस्म की एक शीट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इस शीट के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको वो आसानी हो जाए, ठीक है। समझ आ गई आपको प्रेजेंटेशन की? प्रेजेंटेशन जितनी भी है वो सारी शीट्स में जो स्टेप्स हैं उनको मैंने क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको शीट समझने में आसानी हो जाए। ऑल राइट, और आप ये ना समझे कि वो शीट पता नहीं कहाँ से आई है। दैट इज ऑल दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्शन प्लान कि फर्स्ट एक्शन प्लान का स्टेप क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक गोल सेट किया that I have to develop self confidence, ठीक है, हम उसी को ले लेते हैं। और if someone wishes, मैं आपको 1 minute देती हूँ to write the goal that you want to discuss in this session's examples. Kindly write down a goal that you want to discuss in the session. जिसका पहला गोल आ जाएगा मैं उसी का गोल पूरे सेशन में डिस्कस करूंगी और आपको शीट बनाने में आसानी हो जाएगी। So if you want that your goal to be discussed over here, आहा, स्ट्रगलिंग टू फिलफिल द कमिटमेंट्स आ गया एक हमारे पास। और डीप लर्निंग, ओके, until end of September, until नहीं, deep learning is a lifelong process, fluent English speaking, self confidence, okay. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और क्योंकि ये बहुत सारे और भी लोगों का था। डीप लर्निंग, उबैदुल्ला, आई शेयर विद यू अ कोर्स, हार्वर्ड एजुकेशन रिसोर्स का है जो मैंने भी किया हुआ है। इट्स अ ब्यूटिफुल कोर्स, आई विल शेयर विद यू, मुझे रिमाइंड कराइएगा, आई शेयर विद यू द लिंक ऑफ दैट कोर्स। वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इंशाल्लाह। ओके, कमिटमेंट, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल को पहले तो स्पेसिफिक करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगेन इज नो गोल, इज नॉट अ स्मार्ट गोल। एक्शन प्लान वर्क्स अपॉन स्मार्ट गोल्स। अगर गोल स्मार्ट नहीं है तो एक्शन प्लान बनाने में भी उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी जितना किसी और चीज में। सबसे पहली चीज ये कि गोल्स को स्मार्ट क्राइटेरियाज के ऊपर, SMART क्राइटेरियाज के ऊपर सेट कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले उन गोल्स को छोटे छोटे चेक पॉइंट्स पे बना ले। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा गोल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स डिवाइड दोज गोल्स इनटू माइलस्टोन्स एंड बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल गिविंग कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस ऑफ 100 पीपल, पहली चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहली चीज नहीं, अभी सिर्फ लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसके और क्या चेक पॉइंट्स होंगे? टॉकिंग और स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, और स्पीकिंग इन अ फ्लुएंट उर्दू, उर्दू को तवातर से बोलना, ठीक है, किसी के सामने। प्रॉब्ली अ चेक पॉइंट इन योर माइंड इज कि मैं किसी भी अनजान आदमी से बाहर जाके बात कर सकूं, उससे कोई सवाल कर सकूं, उससे कोई रास्ता पूछ सकूं। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस के मल्टीपल जॉनरास होते हैं ना। प्रॉब्ली मैं दुकान पे जाके बार्गेनिंग कर सकूं, राइट। मैं अपनी प्रेजेंटेशन, मैं अपनी असाइनमेंट को, मैं अपनी असाइनमेंट को वीडियो फॉर्म में, या मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। जितने स्मार्ट पॉइंट्स, जितने चेक पॉइंट्स और जितनी माइलस्टोन्स आपको लगता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के रास्ते में आप अचीव करना चाहते हैं, उनको, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करके आपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स और चेक पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर लेना। यू गॉट दिस? समझ आ गई यहाँ पे आपको? ऑल राइट, यस, टाइम मैनेजमेंट वो फिर टाइमलाइन में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड पॉइंट एक्शन प्लान के अंदर आ जाता है, टू अचीव दोज माइलस्टोन्स। वो तो माइलस्टोन्स हो गए, दुकान पे जाके बार्गेन करना, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन देना, यूट्यूब की वीडियो बनाना, डाडा डाडा, वो माइलस्टोन्स थे, ठीक है। अब बैठिए and make a list of every possible action that you can take, you can think of taking to achieve your goal. For example, listening to videos, listening to audios, listening to TED Talks, reading books,
going and meeting out people every day, stepping out of house, maybe exercise, maybe vocals training होती है, vocals की sound voice trainings होती हैं, maybe that, maybe every day talking to a friend for 5 minutes, maybe every day communicating for this and that, every possible list that you can think of to achieve that goal, वो आपने एक बना लेनी, जो कुछ समझ में आता है, सही गलत, डू नॉट थिंक अबाउट ये लिस्ट करने के फेज में, इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रॉन्ग, जस्ट मेक अ लिस्ट, you get it? You have to just list down everything that you can think of, possibly think of doing to achieve that goal. Okay? Then, next step, sequence. अब आपने वो सारी लिस्ट बना ली, और फॉर एग्जाम्पल हमने शॉपकीपर से बार्गेन करना सीखना है, शॉप पे जाना, बात करना, कुछ खरीदने के लिए थोड़े से पैसे होना, फॉर एग्जाम्पल जाहिर है जाएंगे, बार्गेन करेंगे, कोई बात करेंगे, या किसी को साथ लेके जाना है, हर चीज हमने सोच ली, ठीक है? नाउ वी हैव टू सीक्वेंस. द फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टू गो आउट ऑफ माई हाउस, then I have to go to a certain shop, then I have to buy, then I have to start bargaining, right? There is a sequence of everything. So जो लिस्ट पे आपने हर चीज लिखी होगी, सही गलत जो भी चीज है, उसको आपने सीक्वेंस करना है. Sequencing is a skill, people. You are young people, you are about to get into your practical lives. By all means, kindly learn to sequence. हमें पता ही नहीं होता कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है. जो पहले करना होता है वो बहुत बाद हो जाती है, हमेशा देर कर देता हूँ, और जो बाद में होता है ना, वो शायद हम बहुत पहले करके बैठे होते हैं. सीक्वेंसिंग, अगेन ये सब चीजें आपको बताने का, यू विल रिमेंबर इंशाल्लाह इन योर लाइफ, बिकॉज दीज आर स्किल्स टू लर्न. ये बैठे बैठे नहीं आएंगी. जब आप लिस्ट बना के सीक्वेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन विल स्टार्ट सीक्वेंसिंग योर लाइफ एज वेल. ठीक है? इट्स अ स्किल. नाउ ये स्किल कर लिया, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट रोड मैप. देन prioritize, another huge skill missing in all of our generation and nation, prioritization. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने प्रायोरिटाइज क्या करना है. जब वो सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास, पहले वो लिस्ट थी, रैंडम लिस्ट, सीक्वेंस में आई, अब आप उसको प्रायोरिटाइज करें. प्रायोरिटाइज कैसे करें? क्या ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है? ठीक है? अब अर्जेंसी एंड प्रायोरिटाइजेशन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. इज दिस अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट? तो उसके ऊपर डबल टिक कर दीजिए. इज दिस इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट? ये आपको एक्सेल शीट में मिलेगा, उसके ऊपर सिंगल टिक कर दीजिए. इज दिस अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट? तो सेकंड वाला अर्जेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए. बट ये नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, तो वो काट दीजिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल थिंग. Prioritize the list. Sequence aa gaya. Now prioritize in terms of urgency and importance. This is life as well. If my mother needs it before मेरे career, कभी family, health and career में से आपको कोई एक चीज prioritize करनी पड़ती है. And we are least skilled to prioritize that in a better way. अगर हमें ये पता होगा ये अर्जेंट है, ये 2 मिनट बाद भी किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले करना है, ये बाद में करना है, देन वी आर एबल टू मैनेज आवर लाइफ्स इवन बेटर. Prioritization is not only for personal development, action planning skills, it's a huge skill in life as well. जो 4 quadrants पे, urgent and important, important but not urgent, urgent but not important, neither urgent nor important. इसके ऊपर सारी लिस्ट को काट के, जो कटने वाले उनको काट दीजिए, जो सही करने वाले उनको ऊपर कर दीजिए, एंड देन रीअरेंज दैट फाइनल लिस्ट. यस. अच्छा, उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं आपके उसके ऊपर. नेक्स्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, एक्शनेबल स्टेप्स. अब वो जो सारी लिस्ट बनी थी, वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपने ऊपर माइलस्टोन्स बनाए थे, अब वो जो सारा गोल है ना, वो एक्शनेबल स्टेप्स में सीक्वेंस और प्रायोरिटाइज होके एक नई लिस्ट बन जाएगी.
समझ आ गई आपको जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे? एंड लास्ट थिंग, बिकॉज अभी जब आप यहाँ से जाओगे तो ये जो हमारे टेक कान है, टेक आंखें हैं, टेक नाक है, ये आपको फौरी तौर पे ना आपकी फेसबुक की और आपकी गूगल की और आपकी यूट्यूब की वीडियोस में देगा, फॉरगेट अबाउट गोल्स, स्टार्ट प्लानिंग डेली सिस्टम्स। देखना ये भी आना शुरू हो जाएगा, आप सबकी यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू हैव लर्न अबाउट गोल्स नाउ यू। ये तो गोल्स तो सेट ही नहीं करते ना 2025 में, मिस आप गोल सेट करना बता रही हैं, वो हमें यूट्यूब की वीडियो बता रही है कि सेट नहीं करने गोल्स बट स्टार्ट मेकिंग डेली सिस्टम्स। तो मैंने कहा मैं ज़रा आपकी तसल्ली करा देती हूँ। एक्चुअली विदाउट गोल्स डेली सिस्टम्स डू नॉट ऑपरेट, राइट? डेली सिस्टम्स मीन्स ये लास्ट प्लान होगा आपका एक्शन प्लान का। जब आप छोटे छोटे टास्क बना लेंगे, यू ऑल्सो हैव टू सेट स्मॉल टास्क, जैसे आपने 30 डे चैलेंज में किया था, मैंने आपको ऑलरेडी उसके लिए तैयार कर दिया है। दोज आर योर डेली सिस्टम्स। ऑलरेडी यू आर माशाल्लाह वर्किंग अपॉन योर डेली सिस्टम्स थ्रू दैट 30 डे चैलेंज, बिकॉज दैट मीन्स कि इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए छोटे छोटे 2-3 ऐसे टास्क सेट करना जो आप डेली करो और आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप कहते हो, एक लिस्ट तो आपके पास आ गई अचीव करने के लिए माइलस्टोन की। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप कहते हो, आई हैव टू टॉक टू 5 minutes टू माई नेबर डेली। आई हैव टू फॉर एग्जाम्पल स्टैंड इन अ मिरर एंड से रीड अ स्टोरी टू मी डेली। ठीक है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल डेली सिस्टम्स। और अल्टीमेटली वो आपके गोल्स को रीच कर रहा होगा, बिकॉज दे आर लिंक टू योर गोल्स। यू गेट द पॉइंट? ये सब कुछ आपको एक्सेल शीट में भी मिलेगा, और जो फाइनल पीडीपी फाइनल असाइनमेंट होगी जिसमें आपने सिर्फ अपना प्लान लिखना होगा, एक तो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो आपको अलग से है, वो आप देखोगे आपको सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा। बट जो फाइनल असाइनमेंट होगी उसमें आपने सिर्फ एक्शनेबल प्लान्स और डेली सिस्टम्स को लिखना होगा, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप एक्शन प्लान इज क्लियर टू मी, क्लियर टू यू पीपल। बिफोर आई मूव ऑन, इसमें कितना टाइम लग जाएगा बेटे? इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे पूरी लिस्ट बनाने में आपको। ओके okay? अगर आप 10 चीजें भी सोचते हो तो यू विल राइट, उनको सीक्वेंस करना है, सो इट विल ओनली टेक 10 minutes। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मुताहिर, आपके टास्क में मे बी, अब ये डिपेंड करता है कि यो टास्क लिस्ट है उसमें क्या है। देर आर सम थिंग्स विच आर अर्जेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कोई चीज़ लेने जाना है मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल येस, प्रॉब्ली यू हैव टू गो, योर मदर टोल्ड यू और whoever it is, probably you have to go buy bread which is urgent। इंपॉर्टेंट नहीं होती है ब्रेड लेना, आपकी टारगेट से रिलेटेड नहीं होता, बट फॉर एग्जाम्पल इट इज अर्जेंट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अर्जेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू ईट ब्रेड एवरी डे, यू कैन सब्सटीट्यूट दैट, मगर अर्जेंसी हो जाती है क्योंकि वो एक रूटीन में बनी होती है चीज, राइट? सो अर्जेंसी इज समथिंग विच इज इन अ रूटीन, और अर्जेंट आपको करना है, यू हैव टू गेट ओवर इट सो दैट यू इट डजंट लाइक बॉदर यू फर्दर। सो अर्जेंसी quadrants इज अबाउट समथिंग विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अर्जेंसी के उसमें आए होते हैं कि उसको करके यू हैव टू गेट इट असाइड। ओके, इंपॉर्टेंस तो हमारी अपनी वैल्यूज के साथ इंपॉर्टेंस। जी जी प्लीज अनम्यूट बताइए। These are going to be tasks that can be substituted with other tasks, Yes, right? mostly substituted, yet वो रूटीन या उसके ऐसे होते हैं that they are urgent, so we do not waste time on them। See, जो चीजें सबकॉन्शियस और हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती है ना, उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते टू थिंक इधर इंपॉर्टेंट, अर्जेंसी में है करके साइड पे करें एंड देन जस्ट गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। इसके लिए हम, जी बिल्कुल, आप एक्सेल शीट इस्तेमाल करेंगे उबैदुल्ला? यस, इंपॉर्टेंट टास्क तो वो होते हैं, उनकी ड्यू डेट नहीं होती, लेकिन अर्जेंट वो होते हैं जो बिल्कुल इमीडिएट अटेंशन चाह रहे होते हैं। समटाइम्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम कुकिंग। समटाइम्स फॉर एग्जांपल आपकी इफ यू आर बॉइलिंग फॉर एग्जांपल राइस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऐड फॉर एग्जांपल सॉल्ट, लेकिन वो अर्जेंट है बिकॉज अगर आपने उस वक्त नहीं डाला तो देन इट विल नॉट वर्क। सो सम थिंग्स विच हैव इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है। बच्चे ने फॉर एग्जांपल, बच्चा भाग रहा है
कहीं गिर ना जाए, यू हैव टू इमीडिएटली अटेंड दैट टास्क। उस वक्त इंपॉर्टेंस की नहीं सोच रहे होते, डेडलाइंस की नहीं सोच रहे होते, सिर्फ अर्जेंसी की सोच रहे होते। ऑलराइट, थैंक यू Gulsanober for helping me out. Different training in criteria, if there's too expensive, that how can we explore? Naila, there are multiple trainings that are free for beginning. Only certifications require certain finances. So ऐसी ट्रेनिंग्स अडेप्ट कीजिए। इनिशियली जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने सारी ऐसी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं विच वर विदाउट पैसे। सर्टिफिकेट्स ना भी मिले तो यू डू नॉट नीड अ लेबल, बट यू नीड एक्चुअली the skill and the learning. So there are multiple trainings free of cost available, बस सर्टिफिकेशंस नहीं होती उनके साथ। अच्छा जी, यस, थॉट प्रोसेस उबैदुल्ला, जब आप ऐसे किसी काम पे चल रहे हो तो स्लीप ओवर इट, दैट्स बेटर। कि थॉट प्रोसेस में टाइम ज़ाया करने की बजाय आप जब उसके ऊपर सोना शुरू कर देते हैं, एक दिन आप उसको देखें, जस्ट स्लीप ओवर इट, नेक्स्ट डे फिर देखें, जस्ट स्लीप ओवर इट, एंड देन थर्ड डे यू विल ऑटोमेटिकली, जब आप बैठना शुरू करोगे, यू द थॉट प्रोसेस इज ऑलरेडी सो क्लियर दैट यू विल बी एबल टू राइट क्विकली। ओके, yes, when it comes to food, food is a very safe thought to give to people. That is why it is. Okay जी। गाजर का हलवा और पाए इस मौसम में नहीं खाए जाते बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर आपको मैंने 2 आर्टिकल्स भेजे हैं, ऑल दो सारे मैं आई वांटेड टू गिव यू अबाउट ऑल 5, बट मैंने ओवरवेलम नहीं किया। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू जो लिमिटेड टास्क थे। बट व्हेन इट कम, अब आपने टाइमलाइन तो बना ली, राइट, सॉरी, अब आपका गोल सेट हो गए, आपका एक्शन प्लान बन गया, एक्शनेबल स्टेप्स आपके सामने आ गए। अब आ जाती है उन एक्शंस को लेने के लिए रिसोर्सेज। बहुत सारे बच्चों ने मेंशन किया इन डिस्कशन फोरम एज वेल एज इन देयर थिंग्स, बिकॉज दे आर फेसिंग इश्यूज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज, जिनको यूजुअली, जैसे हमने रिस्क को सिर्फ खाना, पाए और गाजर का हलवा कहना शुरू कर दिया, वैसे ही रिस्क जो है उसकी एक वास्ट डेफिनेशन है। रिस्क सिर्फ खुराक नहीं है, रिस्क रिश्ते भी हैं, रिस्क नॉलेज भी है, रिस्क स्किल भी है। इसी तरह हमने रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ पैसे से लिंक कर दिया, हालांकि रिसोर्सेज इज अ ह्यूज थिंग। 5 कोर रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड बच्चों, sorry, we were talking about 5 core resources. The first one is time. जब अर्जेंसी की बात हो रही थी ना मुताहिर, टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम चीज़ों में। बाज दफ़ा इंपॉर्टेंस को देख के उसके ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती, उसको बस साइड पे करना होता है, बिकॉज वी वांट टू सेव टाइम। टाइम इज मनी एज वेल। सो टाइम इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे उबैदुल्ला ने भी कहा, टाइम मैनेजमेंट हमें समझ नहीं आ रही होती। सो आपने, जब आप लिस्ट बनाएंगे और टाइम रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात आएगी, तो टाइम के नीचे लिखे कि सर्टन टास्क कितना टाइम ले रहा है आपका, जो आपका एक्शनेबल स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक गोल या वो एक गोल का वो एक्शनेबल स्टेप कितना टाइम लेता है दिन में, क्या आपके पास उतना टाइम अवेलेबल भी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हम उसको ट्वीक करेंगे, वो हम आगे जाके बात करेंगे। पहले आप रिसोर्स की लिस्ट बनाए, कितना टाइम चाहिए फॉर सर्टेन टास्क दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर दो सर्टेन गोल। ओके, अच्छा जी, यस, यस, रिसोर्सेज मुताबिक इंटरेस्टिंगली अभी आगे भी देखेंगे आपके, खाली टाइम और मनी नहीं है। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इवन बिफोर मनी इज योर एनर्जी। It's not only physical energy, it's spiritual energy, physical strength, mental energy as well. ये 3 तरह की एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिसके ऊपर मूडल में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एनर्जी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द लीस्ट फोकस्ड एरिया, बिकॉज यूजुअली हमें ये भी नहीं पता होता आर वी अ डे पर्सन और अ नाइट पर्सन। अगर आप डे पर्सन हो तो आप अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिव काम डे में करोगे, और अगर आप नाइट पर्सन हो तो यूजुअली यू विल डू योर प्रोडक्टिव वर्क एट नाइट, एंड दैट इज द काइंड ऑफ जॉब यू विल प्रॉब्ली ऑप्ट एज वेल। प्रॉब्लम ये होती है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। जब सेल्फ रिफ्लेक्शन की बारी आई थी ना, उसमें योर एनर्जी, ये जो मैंने आपके साथ आर्टिकल शेयर किया है, दैट विल ऑल्सो आस्क यू सर्टन क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड योर एनर्जी बेटर एज वेल। ओके, so your energy is something that you need to understand more about. Okay,
डू यू हैव मोर ऑफ इमोशनल एनर्जी? अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग हो, रिजिलियंट हो, जैसे अभी एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज नॉट इवन फीलिंग वेल, through her emotional energy she was able to cope through PDP session 4. She mentioned that very interestingly. So what kind of energy you have in terms of your emotions, physical strength and your spiritual strength, ये आपने और व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वुड इट रिक्वायर? फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपने वेट लिफ्टर बनना है, सो यू हैव दैट फिजिकल एनर्जी, राइट? सो और स्पिरिचुअल एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी फॉर परसिस्टेंस एज वेल. सो वो आपने मेंशन करना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ऑफ कोर्स यू विल नॉट मेंशन इट इनके मुझे इतने केजीज में चाहिए होगी, बट दैट मीन्स दैट डू यू नीड फुल एनर्जी, डू यू नीड लो एनर्जी, डू यू नीड हाई, ये हाई एनर्जी टास्क है, लो एनर्जी टास्क है और मीडियम एनर्जी टास्क है. दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन इन योर रिसोर्स प्लानिंग. ओके, देन कम्स इन ऑफ कोर्स मनी. मुताहिर, पैसे आ गए हैं, राइट? यू वर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड मनी. सो मनी इज ऑफ कोर्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स. लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ पैसा रिसोर्स नहीं है, राइट? देयर आर मल्टीपल अदर विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट. देन कम्स इन द अदर रिसोर्स, योर स्किल एंड नॉलेज is one of the core resource that you have. Your skills and knowledge is one of the resource to achieve your goals, to realize your goals. So if for example आपके actionable steps में है कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, राइट? या मैंने 10 मिनट्स के लिए मिरर के सामने खड़े होकर स्टोरी पढ़नी है, और आपके रिसोर्स में वो एक लो एनर्जी टास्क है, बट जो नॉलेज एंड स्किल में अगर आपके पास स्टोरीज ही नहीं है, और यू नीड टू लर्न स्टोरी टेलिंग स्किल, or you need to learn English reading skills. So those are your skills and abilities that are your resource that you would require, either you have or either you would require, right? So skills and knowledge is a huge resource that you can utilize to achieve your goals. Yes. Okay. नाइला, देखते हैं उसको. मैं आपको I'll answer this. Health is wealth and knowledge is power. True. Then last and very important and least for granted, Mutahir, is your social network. Sometime I'm calling Mutahir because उसने mention किया था what else. Sometimes हमारे पास पैसे नहीं होते, टाइम भी नहीं होता, but we do have a friend to take care of something. We do have a mentor to tell us something quickly. We do have some family members to take care of something, right? So it's a huge resource. If you have a mentor, तो आपको वो जो actionable steps में quickly self confidence build करना है, आपको शायद किसी और resource की जरूरत नहीं पड़ेगी. Just go and sit with that mentor for 10 minutes daily, right? So resources play a very very important role. Time, energy, money, skills and knowledge and support network that you would require. For example, there if you want to be an entrepreneur, as Ubedullah mentioned in the discussion forum as well, you cannot do everything all alone. You need to have a support network to reach that goal. So आपने उस support network को mention करना है, मुझे कौन कौन सा कितने लोग चाहिए होंगे इस particular काम के लिए. All right? Then रिसोर्स मैनेजमेंट में उन सारे वो जो रिसोर्सेज हैं आपके, राइट, उन रिसोर्सेज को 4 तरीके से मैनेज किया जाता है. एक तो रिसोर्स इटसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्स इटसेल्फ इज समथिंग, बट देन मैनेजिंग दोज रिसोर्स अगेन इंशाल्लाह इन योर लाइफ एंड करियर, the skill itself is a huge skill that you will learn. The first thing is resource identification. What do I already have? ये बहुत हमारे पास बाज़ दफ़ा इतनी इतनी इंटरेस्टिंग स्किल और नॉलेज होता है, इतना ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट नेटवर्क होता है, और हमें उसकी पता ही नहीं होता. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट that what are your resources that you can use to achieve your goals, right? That identification itself. Then second point आ जाता है allocation. कि मैंने कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 या 3 लोग ऐसे हैं दैट कैन हेल्प मी फॉर एग्जाम्पल अचीव सर्टन गोल, सो मैंने विच पर्सन आई वुड एलोकेट, राइट? या मैंने, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने कौन से टास्क को, कौन से गोल के लिए कौन से टास्क को 1 रुपया देना है, कौन से गोल को 2 रुपए देने हैं, कौन से गोल को 3 रुपए देने हैं. यू गेटिंग इट? सो एलोकेशन इज वन थिंग. पहले आइडेंटिफिकेशन, आई हैव 10 रुपीज, देन एलोकेशन, उसमें से मैंने कितने कितने पैसे किसको देने हैं.
देन रिसोर्स शेड्यूलिंग, और 10 रुपए के नाम से जिसको हंसी आ रही है जरा थोड़ी देर वेट करें, कोई बात नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, इट्स ओके टू लाफ एज वेल. ओके, देन कम्स इन शेड्यूलिंग, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपीज हैं, लेकिन मुझे मेरे पास 10 दिन के बाद 10 रुपए और आ जाएंगे. तो पहले 10, वो जो 10 रुपीज है, मैं क्या शेड्यूल कर सकता हूँ कि फर्स्ट 10 डेज में इतने पैसे खर्च कर लूँ, सेकेंड 10 डेज में इतने पैसे खर्च कर लूँ, यहां से आएगा. दैट्स व्हाट वी कॉल शेड्यूलिंग. ऑल राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. देन लास्ट थिंग कम्स इन मॉनिटरिंग. How much do I have left? Am I going right in terms of using or managing my resources? So these are 4 areas through which you manage your resources. प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान की जो फाइनल असाइनमेंट लिस्ट है, उसमें आपने ये काम नहीं करना, उसमें आपने सिर्फ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लिखने हैं, दैट इज इट. ओके, यू गेट इट. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने उनको मैनेज कैसे करना है. ऑल राइट. So before I move on to the timeline or our next thing, any questions that you have? Network is important, Naila, indeed. Yes, your network is your worth. Any questions that you have? कि हम टाइमलाइन की तरफ चलें. डू नॉट वरी, मैं इसको रैप अप कर दूंगी बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल. उसके बाद मैंने मूडल के ऊपर आना है. ओके ओके जी. सो you have a question, Mutahir? Yes, please Yes, unmute. I have a question. I noted this down while we were discussing all our resources, and surprisingly, there are 5. So thank you so much for that. You mentioned while we were discussing about our energy as a resource, you mentioned that it's, you know, we have daytime people and we have nighttime people, often called as day Vikings and night owls. So my question here is that first we discussed that health is another area of physical fitness, rather, is another area of personal development. So is it okay to work while being a night owl, a night person? Mutahir, there is a bio clock as well. ठीक है. When we talk about sleep and health, it is a huge science and debatable as well sometimes. रात की नींद का कोई मुतबादल नहीं है. इंडीड अल्लाह ने दिन और रात को ऐसे ही बनाया. हाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइकिंग्स, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ. जो लोग फिर रात के होते हैं वो प्रोडक्टिव कामों में, अगर वो रात के लिए होते हैं तो फिर उनकी थॉट प्रोसेस भी वैसे चलता है. राइट. उनकी जो बायो क्लॉक होती है वो सिर्फ थोड़ी नींद मांगती है, डिजर्व नहीं करती, रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है. So when you learn about, this is a skill which is, you say actually bio clock and sleep, अगर आप लिखोगे तो आपको ये skills मिलेंगी to understand your bio clock, right? Some people actually जो उनकी जो RMI होती है, rapid eye movement होती है, REI होती है, जो कि REM सॉरी, जो कि स्लीप के लिए ज़रूरी होती है, वो शायद पावर नैप में 7 मिनट्स में पूरी हो जाती है, इवन एट नाइट और समथिंग. सम पीपल यूजुअली हैव इट विद इन डेज आफ्टर कलूला जिसको कहते हैं. So there is a bio clock linked to sleep. Your essential idea is to maintain your health. So if you need to be aware of your health and sleep and bio clock, अगर आपको लग रहा है कि productivity manage करने में कोई issue आ रहा है, अगर एक डे टाइम में आपका दिमाग चलता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट वर्क दैट लाइक कोई जिस क्रिएटिवली, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कैन नॉट, तो आप क्या करोगे? देन ऑफ कोर्स मेंटेनिंग के, अच्छा 2 दिन में ऐसे कर लेता हूँ कि मैं रात को ये वाली थॉट्स दे लेता हूँ, थर्ड डे आई विल हैव अ प्रॉपर नाइट एंड देन शिफ्टिंग अगेन, दैट्स योर मैनेजमेंट in terms of your health and sleep as well. So first thing is to know yourself, know the required science and manage it. That's it. Okay. मैं I'll ये नहीं surely कह check सकती out it's those not, it's resources. okay, because everybody is different in this regard. Okay. Now coming to the fifth portion, which is timeline creation, जिसकी assignment भी है, और मैंने exactly इस स्लाइड को आपकी असाइनमेंट से जोड़ दिया है, बिकॉज ये सब कुछ मैंने असाइनमेंट के स्टेप्स में भी लिखा है. सो आप सब ने ये काम करना है कि एक टाइमलाइन बनानी है. ओके. टाइमलाइन के बगैर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमने बात की, आई वांट टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट, बाय 70-22 व्हेन यू आर काइंड ऑफ 2000 years old. और जो भी गोल्स टाइम्ड नहीं होते, यस यू आर नॉट, जो भी गोल्स टाइम्ड नहीं होते, मैग्नीशियम ले मुताहिर, यू विल बी फीलिंग बेटर. मैग्नीशियम इज वन थिंग हेल्पिंग इंसोम्निया एंड एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया.
Magnesium complex, by the way. Anyway, coming back to the point. So the goals which are not timed, जिनकी जो टाइमलाइन जिनकी सेट नहीं होती है ना, वो गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते, बिकॉज वी आर लाइक हमें ये करना है, हम सब क्लियर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट वी डू नॉट हैव अ मोटिवेशन ऑफ टाइम. टाइम इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, कि हमारे पास ये टाइम है. एंड देन बच्चों जरा डे टाइम नाइट टाइम से बाहर आ जाओ. टाइमलाइन पे बात करते हैं, डे टाइम नाइट टाइम. मैं जब इसको सेशन को खत्म कर लूंगी ना, जिनको सुनना है वो थोड़ी सी देर के बाद ठहर जाइएगा. आई स्टे विद यू फॉर 5 more minutes. ओके, अभी जस्ट लेट्स क्विकली वर्क ऑन टाइमलाइन. So first, we need to actually understand that without a timeline, you cannot realize a goal. Okay, आपने मैंने to give you, to inspire you, ताकि सेशन खत्म भी हो जाए, आप असाइनमेंट्स करके फारिग हो जाएं, 10 दिन के बाद भूल जाएं कि हमने कुछ किया था. आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग काइंड ऑफ सोवेनियर फॉर यू टू हैव इन योर रूम, ताकि जब भी आप उसको देखें यू गेट इंस्पायर्ड. राइट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बिल्ड इन एज एन असाइनमेंट. यू आर गोइंग टू डिजाइन अ टाइमलाइन पेपर पेंसिल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर नहीं. वाई पेपर पेंसिल, आई विल टेल यू सम लेटर, सम अदर टाइम. बट आप यू हैव टू एक्चुअली एक चार्ट पेपर लेके और मे बी अ लॉन्ग शीट लेके आपने एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है. टाइमलाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स, डेडलाइंस, जो बेंचमार्क्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट यू हैव टू एक्चुअली एक लाइन आप बना लेते हैं. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, समटाइम्स इट्स वेवी एज वेल. वट एवर काइंड ऑफ लाइन यू वांट टू मेक यू कैन मेक. और उसके ऊपर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के लिए टाइमलाइन ऐसे होती है कि आपके जो भी एक्शनेबल स्टेप्स थे, अभी पीछे एक्शन प्लान में आपने फाइनली एक्शन स्टेप्स बनाए थे, उनको टाइमलाइन पे आपने मेंशन करना है. कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 एक्शनेबल स्टेप्स हैं बिफोर आई रीच टू माय गोल. ओके, वो आपने पॉइंट्स मेंशन किए. अब आपने मेंशन करना है वो कौन से स्टेप्स हैं और मैंने उनको कब तक अचीव करना है. व्हाट इज द डेडलाइन, what were the milestones that I want to achieve, and what are the deadlines to achieve those. ये आपने सारे अपने उन चेक पॉइंट्स के साथ माइलस्टोन्स और डेडलाइंस को मेंशन करना. ठीक है, हियर आई एम गिविंग यू अ क्लू कि आप माइलस्टोन्स के साथ कोई पिक्चर्स भी लगा सकते हो. those are your inspiration pictures. For example, आपको your goal is to get a car, for example. तो आपका गोल है कि पहले मैंने साइकिल लेनी है, पहले मैंने बाइक लेनी है. just giving an example. So you can just put a picture of a bike or a car or whatever you wish to achieve. Similarly, if you want to be self confident, तो आप माइक की पिक्चर, वीडियो की पिक्चर, कैमरा की पिक्चर. So make it as creative as colorful you want. और जितना कलरफुल होगा उतना ब्रेन attract karega. That's a hypnotherapist suggestion for you people. Okay, so you have to make a timeline for your goals where you have to set the deadline, actionable benchmarks लेके जो आपकी एक्शन लिस्ट में से आपको मिले थे, आपने उनको डेडलाइन रिप्रेजेंट करना है. आपको समझ आ गई टाइमलाइन की? यस, विजन बोर्ड्स भी कहलाते हैं. हम ना विजन बोर्ड्स बहुत ह्यूज होते हैं, बट हमने इसको टाइमलाइन के ऊपर रखना है, लिमिटेड टाइमलाइन के ऊपर. विजन बोर्ड्स आर वेरी ह्यूज थिंग, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है. ओके, ओवर हेयर हम इसको लिमिटेड रख रहे हैं टाइमलाइन के ऊपर. यू गेट द टाइमलाइन. लास्ट चीज इज प्रोग्रेस ट्रैकिंग. and you will be surprised to read this fact. I want एक statement आपके सामने आ रही है, एक fact आ रहा है. I want everybody, आप जहां कहीं भी हो, इसको ऊंची ऊंची पढ़ें. Read it aloud so that you can hear it yourself. Research shows that individuals who regularly monitor their progress towards their goals are 76% more likely to achieve them. And it's a Harvard Business Review. अब मजे की बात यह है कि वो छोटा सा, क्योंकि आखिर में होता है ना बेचारा प्रोग्रेस ट्रैकिंग, उसको हम छोड़ देते हैं. सबसे बड़ी बात ये, वो सारे गोल्स बड़े बड़े एक्शन प्लान एंड प्रोग्रेस मैनेजमेंट, ओ सॉरी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइमलाइन, वो हमें समझ में आते हैं. प्रोग्रेस ट्रैकिंग बस टिक टिक मारना है. एंड वी लीव दैट, एंड हियर वी आर. The ones who track their progress are likely to achieve 76% more their goals. Very interesting. अब उसके लिए आपके शीट में भी मैंने दिया है, there are 3 steps.
आपके जो ये जो चेक पॉइंट्स बन जाएंगे टाइमलाइन के ऊपर, इसके ऊपर आपने मेंशन कर लेना है स्टेटस, इज इट डन, अंडर प्रोग्रेस और नॉट डन। ओके, हैव यू स्टार्टेड इट, आप स्टेटस मेंशन करें। प्रोग्रेस करने का ये तरीका होता है। फीडबैक, क्या मुझे इसमें प्रॉब्लम आई, नेक्स्ट टाइम इफ आई डू इट आई विल चेंज इट, और वट एवर कॉमेंट्स मैंने पूरा नहीं किया, वट एवर फीडबैक यू हैव मेंशन दैट लिख लिया करें, भूल जाता है हमें। एंड देन एडजस्टमेंट्स, जैसे कि अगैन उबैदुल्ला आपके सवाल का जवाब है बच्चे, that you said that you have multiple you do not have time for multiple goals, then you have to make adjustment that you take your goal forward maybe, so you have to make necessary adjustments where you can manage your available time as a resource. Okay, so over here आपने स्टेटस मेंशन करना है, क्या चीज पूरी हो गई है, क्या नहीं पूरी हुई, क्या अंडर प्रोग्रेस है, उसके ऊपर फीडबैक रखना है, और एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड तो वो भी आपने करनी होती है। To do in yes, whatever it is. Yes, Haris, it's we are just, but nahi, yes, that is what it is. Daily tracking, it seems we are at the same place. Every night track yourself, and every other day you will feel better. एहतसाब, सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ ट्रैकिंग एट नाइट इज अ वंडरफुल टू, यू विल नॉट फील लाइक यू आर स्टैंडिंग द सेम, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। सो वो मेंशन करें, ये दिस इज हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ बेसिकली। हारिस, अगर आप इफ यू विल टॉक इन अ पॉजिटिव टोन, टुडे आई वोक अप 4 minutes अर्ली मे बी, today I did this, today I was on time, today I talked better, today I used a better vocabulary, today this and that, then that will help you कि आप कहाँ अचीव कर रहे हैं, राइट। वीक वाइज बोर्ड करना है, आप मंथ वाइज बोर्ड करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। इफ यू वांट टू डू डेली, दैट इज टोटली अप टू यू, बट डेली इज अ वंडरफुल आइडिया, डेली इज अ अमेजिंग आइडिया, इट हेल्प्स यू सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल। yes, no, there are multiple tools, अगर आपको कोई टेक टूल्स यूज करने हैं, अगर आपको पेपर पेंसिल यूज करना है, whatever you wish, then you can use those. All right जी, अभी I am going to stop sharing because हमने 6 areas of personal development planning cover कर लिए हैं, all right, and including जो last time की summary भी थी। अभी जो भी चीजें आपने की हैं एग्जैक्टली दे आर इन सीक्वेंस ऑफ योर मूडल, ठीक है। सो देर आर 3 असाइनमेंट्स। फर्स्ट इज एक्शन प्लान प्रैक्टिस, राइट, जो आपने करके अपलोड करनी है। सेकंड इज टाइमलाइन, जो आपने अपने कमरे में बनानी है और लगानी है, और मुझे उसकी तस्वीर अपलोड करके एज एन असाइनमेंट भेजनी है, ठीक है, बेशक अपनी साथ तस्वीर भी ले लेना। थर्ड इज योर फाइनल जो ग्रेडेबल पीडीपी प्लान है, जिसमें आप जो पहली असाइनमेंट से गोल्स यूज किए थे वो कॉपी पेस्ट करोगे, फिर एक्शन प्लान कॉपी पेस्ट करोगे, जो भी आप कर चुके हो उसको बस आपने कॉपी पेस्ट करके और कंप्लीट करना, ठीक है। सेकंड बेटा क्या रिपीट करना है वैदुल्ला, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? सेकंड असाइनमेंट इज अबाउट टाइमलाइन, जो भी आपने टाइमलाइन बनाई है वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको स्लाइड में प्रेजेंट की थी वो मैंने टाइमलाइन की असाइनमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस में मैनेज कर दिए। टाइमलाइन की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, एग्जैक्टली टाइमलाइन की पिक्चर बच्चे जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, जस्ट अ सेकेंड, वो वैसी होती है। Let me Google one for you. बल्कि खैर just this is the picture. मुताहिर exactly ऐसी पिक्चर होती है टाइमलाइन की। This is the picture of timeline. आप हाथ से लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, राइट, उसके ऊपर बेंचमार्क्स डेडलाइन लिखते हैं, दैट्स, और साथ में कलरफुल पिक्चर्स लगाते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को कटिंग का शौक है। सो अपना थोड़ा सा क्रिएटिव सेल्फ बाहर निकालिए। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बचपन के बाद चार्ट पेपर को, पेपर पेंसिल को हाथ ना लगाए, एंड आई वांट यू टू डू दिस, आई वांट यू टू डू दिस ऑन अ चार्ट पेपर, ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ मे बी न्यूज प्रिंट पेपर, एंड उसके ऊपर लंबी सी लाइन बनाएं और उसके ऊपर अपने बेंचमार्क्स लिखें और वो अपने कमरे में सामने लगाएं। उस पर ढेर सारी या टाइमलाइन पिक्चर वो आपने लेके तो भेजनी है, उसके ऊपर आपने पिक्चर्स लगाएं, इमेजेस लगाएं, ड्रॉ करें, डूडल करें, पेस्ट करना है, कंप्यूटर से निकाल के पेस्ट करना है, डू दैट व्हाटएवर, बट मुझे क्रिएटिव सी टाइमलाइन चाहिए। I hope these skills would be helpful for you.
आई होप कि ये मैंने छोटी सी चीज़ को इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी से जोड़ा ताकि ये आपकी लाइफ एंड करियर में आपको एक्चुअल में हेल्प आउट करे. Okay, now I'm pausing and I want you to raise your hand for questions or comments. We'll take 5 more minutes and then inshallah we will wrap this. Okay, हमने 5-7 minutes late शुरू किया था. बीच बीच में थोड़ी I was like kind of sore throat. So just give me 5 minutes for you people. Yes, Naila, we'll start from you. Unmute कीजिए. If you have camera तो camera on कर लीजिए and talk to us. क्यूरी है या फिर comment है? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम. आई वालेकुम रियली हैप्पी अस्सलाम. कि आपने आज लेक्चर जो मैं देख रही थी कि काफी सारी चीजें थी जो मैं बहुत सारी टाइमलाइन को बना भी रही होती हूँ और प्लान बनाती हूँ, लेकिन एक झील के बाद आके थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है. जैसे किसी ने कहा कि मैम हम रोजाना चेक करते हैं. अब जब मैं रोजाना चेक करती हूँ मैं सेम पेज पे होती हूँ, क्योंकि छोटी छोटे एक्शंस के बाद जब वो नियर पहुंचता है तो बंदे की एनर्जी वो शायद डाउन हो जाती है कि आई हैव टेकिंग too much working but the result is not getting as up mark. तो फिर वो एनर्जी डाउन हो जाती है और वो हम छोड़ दिया करते थे. तो आपने एक टाइमलाइन का बताया जो मुझे लगा कि यार ये मिसिंग फैक्टर था कि मैंने टाइमलाइन के साथ एक चार्ट नहीं लगाया हुआ था जिसको रेगुलर ट्रैक करती, तो शायद मुझे अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस भी एक इनोवेटिव लगती. तो एक ये था आपका मुझे अच्छा लगा. और एक मैम ये जैसे डे वाला जो आप एनर्जी कह रही थी ना, जैसे सम टाइम मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं 11:30 के बाद नहीं जाग पाती और कभी ऐसी एनर्जी आती है कि टेंशन होता है कि नहीं यार 12 बज जाए 1 बज जाए तो मैं 2:30-3 बजे भी उठ जाती हूँ किसी असाइनमेंट की वजह से, आइदर वो यूनिवर्सिटी असाइनमेंट हो या XYZ मेरा जॉब रोल हो. तो मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही आइदर मैं डे पर्सन हूँ या नाइट पर्सन हूँ, ताकि मैं अपनी एनर्जी को उस हिसाब से अरेंज करूँ और उसी तरह का वर्किंग करूँ. तो ये मेरा कंसर्न था कि मैम हमें गाइड अच्छा करिए नायला, इस हवाले फर्स्ट से. चीज, थैंक यू. टाइमलाइन के बारे में एक चीज मैं सबको ये बता दूं कि टाइमलाइन पे जो जो चीज आप अचीव करते जाए उसके ऊपर सेलिब्रेशन भी लगानी है. आपने उस वक्त अपने आप को क्या रिवॉर्ड दिया है, क्या गिफ्ट दिया है, ये तो बाद में होगा, मगर आपने करना जरूर है. आपने उस वक्त कैसे सेलिब्रेट किया अपनी सक्सेस को, वो आपने जरूर अपनी कोई तस्वीर लेके, सेल्फी लेके, प्रिंट करके उसके ऊपर जरूर लगाइएगा. अच्छा, अब रह गई बात आपकी कि डे और नाइट एनर्जी मैनेजमेंट में डे और नाइट पर्सन होना इज ओनली वन एस्पेक्ट. नाइला, यू आर राइट. सम डेज हम अपनी एनर्जी को, अगेन एनर्जी मैनेजमेंट के फिजिकल एनर्जी भी होती है, इमोशनल एनर्जी भी होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है. समटाइम्स बिकॉज ऑफ आर हॉर्मोन्स और बिकॉज समथिंग कि वो हमें डे को जगा रहा होता है, समटाइम्स वो हमें रात को जगा रहा होता है, समटाइम्स कोई खाना हमने ऐसा खाया होता है. इट्स अबाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर एनर्जी. अभी मेरे पास एनर्जी है तो मैं फटाफट से इस काम को खत्म कर लेती हूँ, राइट. एंड देन अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, आई नीड टू नैप एंड रिवाइंड माई एनर्जी. समटाइम्स अभी पता भी चल रहा है कि एनर्जी नहीं है एंड देन वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग ऑन टू समथिंग जो कि अगेन अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है. तो व्हाट वी आर डूइंग टू आवर सेल्व्स. यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मेरे पास इस वक्त इट्स नॉट ओनली अबाउट डे टाइम और नाइट टाइम. समटाइम्स आप कभी डे में आपके पास एनर्जी होगी, समटाइम्स रात में होगी. जिस टाइम हो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कीजिए एंड अगेन अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि अभी है, इफ आई कैन देन आई कैन डू दिस, अदरवाइज मुझे फौरी तौर पे नैप चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है. ठीक है. सो अगेन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं नाइट टाइम पर्सन हूँ या डे टाइम पर्सन हूँ. मल्टीपल एनर्जीज वर्क अलोंग विद फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हार्मोनल फैक्टर एज वेल. ओके, हाँ जी, आगे आ जाइए. एनीवन एल्स? अब थैंक यू नाउ आई मैम. वांट एवरीवन कि मैं जो इस वीक के एंड तक जो भी असाइनमेंट्स ये जो करंट वीक चल रहा है उस तक आएंगी, दैट आई विल ट्राई टू चेक साइड बाय साइड एंड यू गाइड यू पीपल एज वेल. उसके बाद सिर्फ ग्रेडिंग हो पाएगी. जो गाइडेंस वाला प्रोसेस है डेफिनेटली वो उस तरह से नहीं हो पाएगा. सो जो आपकी असाइनमेंट्स विद इन ड्यू टाइम काइंडली सबमिट कीजिएगा ताकि एज अगैन एज एन एजुकेशनिस्ट और एज एन एक्सपर्टीज मैं आपको गाइड भी कर सकूं इन योर लाइफ एंड करियर. सो वो गाइडेंस सिर्फ जो टाइम पे असाइनमेंट्स आएंगी उनकी हो सकती है, उसके बाद सिर्फ मैं उनकी ग्रेडिंग कर सकती हूँ. ठीक है. और ग्रेडिंग से बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैंने बहुत इजी चीज़ें इसलिए दी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कि उसके ऊपर नंबर भी नहीं इसलिए ज़्यादा किया ज्ञान.
The problem is it's not something it's not about gradable course. It's about you learning something. It's about you doing something in your life with this course. ये grades मुझे कोई matter नहीं करते. हो सकता है probably I just let it go. If you have completed it, if you had uploaded, मेरे लिए काफी है. But it is for you to do actually something with all of this learning that we have done. Please, Jojo, the session is officially ended. I'm not going to share until your questions. So Jojo, kuch commitments and kindly you people can leave because we're 10 minutes over already. The ones who have a question can stay and talk to me. The ones who wish to leave, kindly leave because your session is officially ended. Okay? जी मुताहिर, आप बताइएगा. Yes, ma'am. आपका question है? I have a question. Normally in software development, a lot of project management happens, and we have this thing where we, work on multiple sprints. So there are parallel sprints, like maybe 2 or 3, and a team resource is working on 2 or 3 projects. It could be the same project but different sprints, or different projects from like 1 or 2 sprints, right? Can the same be done in personal development? Do you think it's possible to work on वो 2 or 3? comparative timelines होती हैं बेटे, वो comparative timelines होती हैं. There is a linear timeline and then there are comparative timelines as well. Okay? So वो जो project management में multiple goals के साथ एक के अंदर चल रहा होता है, either comparative or either linear, you can do that in person if you have enough resources in terms of time, money and all that stuff. And energy as well. Sometimes अगर आप बना भी लोगे, you do not have time, money, it will frustrate you. वो गोल लगाना जो आपको पता है मैं 10 साल के बाद ही कर सकता हूँ और अभी फिलहाल उसके ऊपर टाइम भी नहीं दे सकता, will only frustrate you. So if you have ample resources for something at least to begin and then develop side by side, only then begin. All right. Okay. Anything else, बच्चों? Recording, yes, Naila, we will inshallah develop decision making skills. Oh, this is something very important, Halima. Decision making skills have quadrants. जैसे अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंट के क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में अर्जेंसी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट प्लस अदर क्वाड्रेंट्स आर यूज्ड. ये या तो आप डिसीजन मेकिंग को ऑफिशियली स्टडी करो तो आपको क्वाड्रेंट्स का पता चलेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको अडेप्ट करो, और या एक चीज सिर्फ याद रखो कि अपनी वैल्यूज 3-4 अपने जो है ना वो प्रायोरिटाइज कर लो चीज़ों को कि ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, उसमें अपनी वैल्यूज अपनी इंटरेस्ट को मर्ज करो और खुद से अपनी एक लिस्ट बना लो. फैमिली, हेल्थ, दिस फॉर एग्जाम्पल. इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है, मैंने नहीं करनी, मैंने हाथ रोकने, ये अपने अंदर एक छोटी सी चीज बना लो. दैट विल हेल्प यू, जिसको इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग कहते हैं. इन दैट for a formal decision making, there are again urgency importance quadrant and other quadrants that you need to learn in skills. ये skills हैं. और अगर मुझे याद कराइएगा तो मैं आपको उसके लिंक्स भी भेज दूंगी. बहुत सारे कोर्सेज हैं टू टेक अबाउट डिसीजन मेकिंग, वो स्किल है. ठीक है. इनफॉर्मल के लिए प्रायोरिटाइज हेल्थ, फैमिली, मनी डैश डैश डैश, और उसके आगे फिर जब भी आपकी वो क्विकली से अपने आप को प्रोसेस करो. ये मेरी फैमिली है, इसको मैंने सबसे ऊपर रखना है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने टाइम भी देना है, पैसे भी देने हैं. सो डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक. इनफॉर्मल. यस नाइला, योर हैंड इज रेज्ड बेटे. मैम, जैसे मैं आपसे मालूम कर रही थी कि मैंने एक प्रोग्रेसिव प्लान बनाया और उसमें मैं समझती हूँ कि मैं जैसे मिमिक कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ था, या वो मैंने मैनेजर का एक रोल सेलेक्ट किया. अब मैं लिंक्डइन पे देखती हूँ कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, मैंने रिजेंबल किया और उसके ट्रेनिंग्स उठाई. अच्छा, वो मैम चूंकि कॉस्टली होती है, जैसे आप कह रही थी कि काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं, तो हम वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हम ठीक है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को अपग्रेड तो करना है, तो उस हवाले से मैम मुझे गाइड कर रहे हैं. बेटे TED Talks is one of the best ways to do it. इन सारी ट्रेनिंग्स जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, इनकी टॉपिक्स को लेके सर्च कीजिए उस टॉपिक के ऊपर टेड टॉक्स. ठीक है. Until foremost again have it a goal and a priority to earn more money to spend on your personal development. ठीक है.
दैट वाज माय थिंग। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2007 में, व्हेन आई वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। और पहली चीज थी कि मुझे 7,000 रुपया चाहिए माइंड साइंसेस का एक कोर्स करना था। ठीक है, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग, बट एवरी टाइम मुझे कोई कोर्स पसंद आता था, कोई चीज मुझे लगता था दिस विल बी वर्थ वाइल, मैं उसके लिए कभी महीनों, तो लिटरली कभी सालों पैसे जमा करती थी। बट जैसे ही वो हो जाते थे, द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज टू इन्वेस्ट इन माय माय डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि छोटे छोटे टारगेट भी बना लें। तब तक TED Talks is a brilliant way to cover up and to learn for those skills that you're talking about. ये जो सारी आपने amazing technique use की है, which is like noticing the pattern, ये neuro linguistic skills में होता है, noticing the pattern of successful people and following that। उसमें से उन टॉपिक्स को लेते हुए आप TED Talks को उठाइए। TED Talks अमेजिंग टॉक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, आपकी लिंग्विस्टिक्स प्लस आपकी स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगी। ठीक है, All right, everyone. अब मेरा baby time है because I have to give her dinner as well. I am super happy to be with you people. I have learned a lot of things from your perspectives, from your sharings, from your experiences, and inshallah, you have my social media handles as well. Kindly Facebook because it's sort of a personal, but LinkedIn पे if you people wish to add me, साथ में एक message भेजिएगा that you are from this course, ताकि I would add you because वो एक इतना huge number हो चुका है that I probably do not take request until you send me a message that you are from this course. Then inshallah I will add you to keep you updated on whatever I do. And दुआ में याद रखिएगा। I hope ये वक्त हमारे लिए इल्म नाफे बने और आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा दे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।